कोई बीच वाले रूम में तो लंच हो गया होगा। शुरू करें। लो हेलो, शुरू करें, स्टार्ट करें। लो
हेलो, हेलो, स्टार्ट करें? कोई तो बोलो, क्या कोई बता सकता है? स्टार्ट करें? हेलो, क्या स्टार्ट करें? यस सर, कर लीजिए। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेट्राइटिस और सर्विसाइटिस और वेजिनाइटिस के बारे में। ठीक है, ये पहले हम मेट्राइटिस देखते हैं, इसके बाद सर्विसाइटिस को पढ़ेंगे, इसके बाद वेजिनाइटिस के बारे में पढ़ना क्या है, मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मेट्राइटिस जैसा कि नाम से पता चलता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूटेरस। Metritis is very a serious problem. It is emergency problems. Endometritis is little bit slight less problem than the metritis. When metritis occur, it means the entire thickness of the uterus get involved. But in case of endometritis, only the endometrial layers of the uterus get involved in causing these problems. You know, metritis uterus has having 3 layers, है ना? What are the layer? Myometrial layer, serosa layer and पेरी है ना, 3 लेयर्स का बना होता है। ठीक है, सेरोसा लेयर है ना, एपिथेलियल लेयर और मायोमेट्रियल लेयर, इस तरह से 2-3 लेयर्स का बना होता है। और इसमें क्या है, इसी में इंटायर थिकनेस ऑफ यूटरस में अगर इंफेक्शन हो जाए उसको हम लोग मेट्राइटिस कहते हैं। लेकिन सिंपल एक इंडोमेट्रियल लेयर में हुआ है तो उसको हम इंडोमेट्राइटिस कहते हैं। आगे देखिए, मेट्राइटिस और इंडोमेट्राइटिस, इट इज ऑफ 3 टाइप्स: फर्स्ट डिग्री मेट्राइटिस, सेकेंड डिग्री मेट्राइटिस एंड थर्ड डिग्री मेट्राइटिस। if endometrium, अगर इंडोमेट्रियम लेयर इन्वॉल्व है तो ये धीरे धीरे इंटायर यूट्रस में हो जाता है। लेकिन जब हम फर्स्ट डिग्री ऑफ मेट्राइटिस की बात करते हैं, ये ऐसा मेट्राइटिस है जिसमें एनिमल हीट में रेगुलर आएगी, डिस्चार्ज भी होगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम दिखेगा नहीं naked visually, but animal will be unable to fertilize, animal will not be there will be a problem of conception failures, there will be a conception failure, there will be a infertility when first degree of endometritis. फर्स्ट डिग्री ऑफ एंडोमेट्राइटिस का मतलब है जो यूट्रस से जो डिस्चार्ज आता है जो स्ट्रेस के समय, उस डिस्चार्ज में leukocytes, numbers of leukocytes get start to increase. In earlier, it will be not more than 8-10 per sample per fields you will get. When you will examine these samples, this uterine discharge under cover slip, under the low power microscope is 10x. You will see these some numbers of the leukocytes will be there. It means there is a first degree of metritis, and that can be cured. It is maybe also known as subclinical endometritis. You cannot
examine correctly, you cannot say that animal is having the endometritis. But on the basis of the discussion with the owners, owner will tell you the status of the fertility of that animal. हो सकता है कि एनिमल जो है कंसेप्शन फेल्योर. तो इन मेजोरिटी ऑफ केस आइदर द कंसिस्टेंसी ऑफ यूट्रस सॉफ्ट. खास बात ये है कि जब हम मेट्राइटिस के केस का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके यूट्रस जो है वो लेयर जो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो कंसिस्टेंसी है, वो सॉफ्ट रहेगा. इट विल नॉट बी देयर विल बी एब्सेंस ऑफ tonicity of the uterus, which is normally present at the time of estrus. You will not find. There will be a duffiness or softness, है ना. So this type of sign symptom you will see. The discharge thrown by the animal in beginning is clear. अगर कोई डिस्चार्ज जो है, जो यूट्रस से जो डिस्चार्ज आ रहा है एट द टाइम ऑफ एस्ट्रस, अगर शुरुआत में अगर क्लियर है, बट व्हेन यू आर स्क्वीजिंग दिस यूट्रस फ्रॉम द टॉप टू मिड, in the start from the beginning to the top, when you are squeezing the uterus, you will find some discharge having a cloudy or dirty fleck. It will be a case of a second degree of metritis. But when you will find a cow sitting any time in the ground and discharging the pus, it means there is a third degree of metritis or the endometritis, and is continuously discharge of the mucopurulent, purely purulent discharge will be there when animal is suffering from the third degree metritis. There is still the discharge thrown by the animal may clearly indicate it is a case of metritis from oral history or from visual observation. Such cases are considered as the third degree metritis. In spite अगर हम इस तरह से अगर फिर भी हम मिल्किंग कर रहे हैं, मिल्किंग मींस स्क्यूजिंग. When you are milking or you are just giving a pressure from the base of the uterus to the tip of the horn, you will find no any discharge. But after insemination of 3 to 4 days, you will find some pus was attached with the vagina or discharge. It means there is a first degree of metritis. In spite of such discharge is normal, but after AI on the 3rd or 4th day, the first flex as observed, it is considered as first degree metritis or endometritis. The diagnosis of first degree metritis कैसे करते हैं? Mucus discharge under low power lens without staining. आप उसमें leukocyte count कर सकते हैं. On rectal examination, मान ले second degree है, third degree है, तो you will find there is absence of tonicity of uterus. If developed, it can be considered the uterus is infected. अगर atonic है, it means this is a infected uterus. Atonic uterus can give a suspicion of infection. Atonic uterus will be when you are putting pressure over the uterus, it will be a feel like a soft things. It will duff. When you are putting pressure, it will be like when you are putting some जब हम आटा सौंपते हैं तो है ना, दाबते हैं तो कैसे पिचक जाता है, like that. You will see, you will imagine something like that, but not exactly, but it will be like that. If the diameter of uterine horn is more than 3.5 centimeter or the difference between the horn diameter is more than 5 centimeter, infection is suspected. अगर इस तरह से है, यूट्राइन हॉर्न का डायमीटर अगर 3.5 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है तो इसका मतलब है कि यूट्राइन में इंफेक्शन है, यूट्रस में इंफेक्शन है. अगर दोनों यूट्राइन हॉर्न के डायमीटर का डिफरेंस 0.5 सेंटीमीटर आता है, ये भी इस तरह से भी पता कर सकते हैं हम कि जो है इसमें इंफेक्शन है. फर्स्ट डिग्री इंडोमेट्राइटिस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हम इसमें इस तरह से करते हैं कि 1 to 2% फ्लूगल सॉल्यूशन बनाते हैं. 1 to 2% फ्लूगल सॉल्यूशन बना करके और उसको जो है 100 ml में उसको डालना है. 1 to 2 ml एक्वस लेना, इसका 2% फ्लूगल सॉल्यूशन का 2 ml 100 ml में डाल करके और इंट्रायूट्राइन उसमें डालना है एट अल्टरनेट डेज फॉर 3 days. इस तरह से जो है, और कोई एनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यू कैन गिव, है ना, बाय मिक्सिंग इन 20 ml डिस्टिल्ड वाटर इन्फ्यूज्ड इंट्रायूट्राइन फॉर 3 days. दिस ट्रीटमेंट इज कॉमनली डन, है ना, ट्रीटमेंट फर्स्ट डिग्री में. और हमें इस तरह से करना, कई मरतबे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, इट इज not as much as in case of normal, so you have to enhance the circulation
For that you can give also the normal saline infusions. You can give 100 ml, 200 ml of normal saline intrauterines. In place of ever flushing the uterine cavity with normal saline solution can done where fluid introduced to each uterine is इस तरह से हम डालेंगे फीड और फिर बाहर करेंगे, फिर डालना है फिर बाहर करना। इस तरह से क्या है उसके सर्कुलेशन में ठीक ठाक हो जाएगा, जो यूट्राइन सर्कुलेशन है ब्लड का। द प्रेजेंस इज रिपीटेड प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर ईच हॉर्न 3 to 4 टाइम। इससे क्या होगा, सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो यूट्राइन में टोनिसिटी बढ़ेगी और जो भी इन्फेक्शन अगर अर्ली इन्फेक्शन इट विल बी गेट क्यूर्ड। इसी प्रकार से ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंड डिग्री एंडोमेट्राइटिस। जब सेकेंड डिग्री एंडोमेट्राइटिस होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर आप हाथ डाल के एग्जामिन करेंगे तो पस जो है लिटिल बिट जो है स्क्वीज करने पर आएगा। अभी कुछ देर के बाद आइए आप, ठीक है। स्क्वीज करने पे क्या है कि थोड़ा सा जो है लगेगा नहीं है, फिर भी आपका पस फ्लैक्स जो है जब है इस डिस्चार्ज में आएगा। अगर आप मिल्किंग करते हैं तो 2% इक्वल सोल्यूशन से हम उसको जो है 2% लूअल सोल्यूशन जो है उसका हम 2 से 3 ml ले करके और 100 ml नॉर्मल सलाइन में डाल करके उसका हम जो है ना 2-3 दिन तक जो इंट्रायूट्राइन हम डालते हैं, इंट्रायूट्राइन इन्फ्यूजन करते हैं, जिससे कि सेकेंड डिग्री ऑफ एंडोमेट्राइटिस जो है ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है 2 to 4% इक्वल शुगर सॉल्यूशन इज इन्फ्यूज इंट्रायूट्राइन एज ए हॉट सॉल्यूशन। गर्म करके भी दे सकते हैं। ब्रॉड अगर ये नहीं हो सकता है तो कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लाइक स्टेक्लिन बोलस डाल सकते हैं, फ्यूरिया बोलस डाल सकते हैं, क्लिनेक्स बोलस डाल सकते हैं आज वर्थ टाइम। लुगल सॉल्यूशन एंड ब्रॉड Lugal solution and broad spectrum antibiotic give better response in luteal phase. Lugal solution, luteal phase, it means that there should be a corpus luteum while you are treating to give a better response. While Furia bolus give better response in follicular. जब हम फ्यूरिया बोलस डालते हैं तो फॉलिकुलर फेज में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। जो थर्ड डिग्री इंडोमेट्राइटिस है उसमें हम थोड़ा सा जो एफिकेसी है, जो इसकी जो strength है, it increased to 2% to 5%. 5% Lugal solutions if you are giving at least for 3 days by intrauterine infusions, it will be cured. Or as a broader spectrum antimicrobial preparations are coming in the market in the name of different names. Lenevo AP you can give. Lixin IU sachets में आते हैं, Virbac का आता है, Lixin, Kleenex bolus, इसमें ये सब बोलस डाल करके हम जो है यूट्रस में 2 या 3 बोलस डालते हैं, अल्टरनेट डे में हम उसको फिर डालते हैं। इस तरह से यूट्रस में क्या है उसका जो यूट्रस का तीनों लेयर्स है गेट इन्वॉल्व और इन्फ्लेम्ड हो जाता है। कई मरतबे तो इतना ऐसी स्थिति आ जाती है कि एनिमल गेट लेम, एनिमल में जो है लेमनेस आ जाता है ना, और डिस्चार्ज भी सैंग्विनस डिस्चार्ज कई बार होता है, सैंग्विनस जब हम स्क्वीज करते हैं। हेलो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लिक्विड में भी गिवन फॉर इंटरनल 3 to 5 days। उसी प्रकार से हम जो है इस तरह से डिफरेंट थर्ड डिग्री मेट्राइटिस का क्या है, हम थर्ड डिग्री मेट्राइटिस इंडोमेट्राइटिस किसको कहते हैं। इंडोमेट्राइटिस तो ये बात हो गया कि भाई इंडोमेट्रियल लेयर में इन्फेक्शन है, तो अगर सीवियर इंडोमेट्रियल इन्फेक्शन हो जाता है उसी को थर्ड डिग्री कहते हैं या मेट्राइटिस कहते हैं। इंटायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूट्रस होता है। कंडीशन में क्या है, पायोमेट्रा भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, पायोमेट्रा में accumulation of pus, there will be a more than 5 or 7 liter, it will be a 10 liter of pus has been detected, has been found, has been collected from the case of the pyometra. So there will be accumulation of pus. Whenever animal will try to sit, there will be a discharge of pus. All time there will continuous purulent pus discharge will come. And if it is more than 60 days old case, that case will not be cured because there will be a fibrosis of the uterus. So their fertility is also a controversial, or its prognosis is poor if the pyometra of third degree is
if the pyometra of more than 60 days. If this third degree endometritis persists more than 60 days, it will not be cured and the fertility is questionable. So 60 days, 60 दिन से ज्यादा का केस ठीक नहीं होता है, इसकी फर्टिलिटी ठीक नहीं होती। क्यों? इसलिए कि इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। आगे है अदर, दूसरा क्या हो, इसके साथ एंटीबायोटिक देंगे, साथ में हम विटामिन मिनरल फीड सप्लीमेंट भी करते हैं। कई मरतबे हम जो है विटामिन भी जरूरत है, क्योंकि उसमें जो है इंडोमेट्रियल लेयर जो इपिथेलियल लेयर इन्वॉल्वमेंट है, तो हम इसमें विटामिन ए देते हैं, विटामिन ई देते हैं। विटामिन ई के लिए इंजेक्शन आता है, ई केयर से इंजेक्शन आता है, ईवीएम कैप्सूल हम दे सकते हैं। इसके साथ ही हम ये पता है कि जर्मिनेटेड, जो भी जर्मिनेटेड पल्सेस हैं, जैसे जर्मिनेटेड ग्राम्स है, जर्मिनेटेड व्हीट है, दिस ऑल इज हैविंग सम विटामिन्स ऑफ विटामिन इज मोर। जर्मिनेटेड ग्राम में जो है चना को अगर हम पूरा फुला के उसको गजरा करके देते हैं तो उसमें विटामिन का जो है कंसंट्रेशन हाई रहता है और उसमें विटामिन मिलता है। इसलिए हमें जो है इससे केसों फीडिंग जर्मिनेटेड ग्राम जो है ग्राइंड करके उसको फिर बॉयल कर करके खिला सकते हैं, दलिया जो जिसको दलिया कहते हैं, बॉयल। उसी प्रकार जिससे कि विटामिन ई और ट्रेस मिनरल्स मिलता है इसमें। तो अल्टरनेट टू दिस एबव ट्रीटमेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हम आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं मेट्राइटिस के केस में। प्रोस्टाग्लैंडिन काम तभी करेगा जब उसमें कॉर्पस लुटियम होगा। कॉर्पस लुटियम मेट्राइटिस के केस में मिलना ही मिलना है। कोई भी मेट्राइटिस होगा तो वो उसमें लगभग जो है आपको कॉर्पस लुटियम फंक्शन में होगा, कॉर्पस लुटियम होगा और it will be secreting progesterone, because progesterone help in perpetuation of the infection. Progesteronic phase is more progesteronic phase help in these conditions for metritis or the condition forming of pus or infection. Estrogenic fat, while it inhibits these conditions. Estrogenic fat is a healthiest phase for the uterus or the genitalia or reproductive tract के लिए estrogenic fat बहुत बढ़िया होता है, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। सो हम इसमें जो है मेट्राइटिस के ट्रीटमेंट में प्रोस्टाग्लैंडिन भी बाकायदा यूज करते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन तभी हम देते हैं जब कॉर्पस लुटियम है। ये क्या करेगा, ल्यूटियोलाइसिस करेगा। ल्यूटियोलाइटिस जब करेगा तो क्या होगा, कॉर्पस लुटियम का ब्रेकडाउन होगा और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, नेगेटिव फीडबैक हटेगा और एनिमल विल कम इन हीट। व्हेनेवर एनिमल विल कम इन हीट, द ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन विल इंक्रीज। ल्यूकोसाइट in the level of leukocyte, there will be increase in leukocyte countings, and leukocyte, it means that leukocyte help in removing of the infection. So when animal coming in estrus, it means there is cleaning of the infections. So if you are putting corpus luteum in a cyclic cow at while the animal is having CL, if you are giving injection of prostaglandin, it help in bringing animal into the heat. So you can give CL for the treatment of metritis. CL के लिए जो है you can give progesterone, progesterone किस किस ब्रांड में आता है ये पता होगा। ट्रैगमा के नाम से आता है, वेटमेट के नाम से आता है, साइक्लिस के नाम से आता है। Just you give 2 ml intramuscular in the luteal phase. In majority of the animal, the response is good when animal feeding standard is good. ये तभी काम करेगा जब एनिमल का जो है फीडिंग स्टैंडर्ड गुड है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि खाना पीना उसका सही है, मिनरल्स दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं, खिला रहे हैं। इस कंडीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन काम बहुत अच्छा से करता है। दिस पीजीज इज इंजेक्टेड, दिस पीजी आर इंजेक्टेड in the luteal phase when an active CL is present in the ovary. Subclinical endometritis. एंडोमेट्राइटिस तो पता है, इसमें 2 प्रकार का एंडोमेट्राइटिस होता है, एक क्लोज एंडोमेट्राइटिस, एक ओपन एंडोमेट्राइटिस। क्लोज एंडोमेट्राइटिस में क्या होगा, सर्विक्स क्लोज रहेगा, पस एक्यूमुलेट हो जाएगा और एब्डोमेन का साइज बढ़ जाएगा। जबकि ओपन एंडोमेट्राइटिस जो है उसमें पस जो है रेगुलर
निकलता रहेगा। तो सब क्लिनिकल इंडोमेट्राइटिस को पता करना और डायग्नोसिस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. You cannot diagnose and unless you use a certain methodology. So subclinical endometritis is having animal is in a good condition. Animal will be having no any problem. Animal coming regularly on stress. The subclinical may not diagnose by rectal palpation examination. The animal show history of normal stress cycle with failure of conception. The stress mucous discharge usually appear normal. The infection is mild in nature and goes undetected and may diagnosed by white side test and by isolation and culture of refined country. हम white side test करते हैं सब क्लिनिकल इंडोमेट्राइटिस को जांचने के लिए. अब white side test कैसे करते हैं ये हम आगे देखते हैं. white side test. किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं. व्हाइट साइड करने के लिए टेस्ट के लिए क्या है? Just take 2 to 3 ml of the cervical mucus and mix it with 2 to 3 ml of 5% NaOH in a test tube. Mix it and boil. मिला करके जो है उसका सर्वाइकल म्यूकस जो है ले कलेक्ट करेंगे हम, उसमें 2-3 ml जो है 5% NaOH मिला करके बॉयल करके उसको जो है मिक्स करके बॉयल करना है. इसके बाद उसका कलर हमको देखना है. अगर ये येलो कलर आ गया इट मींस इट इज हैविंग द यूट्राइन इन्फेक्शन. द इंटेंसिटी ऑफ येलो कलर इंडिकेट द सीवियरिटी ऑफ इंडोमेट्राइटिस. इफ द कलर ऑफ द यूट्राइन डिस्चार्ज इज सीवियर येलो, इट अगर आप पूरी तरह से येलो है इट मींस एनिमल इज हैविंग सीवियर इंडोमेट्राइटिस. लाइट येलो मींस लेस इन्फेक्शन. डिग्री ऑफ येलो कलर इंडिकेट द concentration of neutrophil indicative alpha. अगर न्यूट्रोफिल की संख्या ये जो येलो कलर होता है that is due to the presence of the neutrophil. If it is get heated it turn into the yellow colors. Degree of yellowness decide the status of the endometritis or subclinical endometritis. क्या क्या साइन है सबक्लिनिकल endometritis के? ये साइन. अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं. If any people is having any query, you can ask. So clinical sign क्या है सब क्लिनिकल इंडोमेट्राइटिस का? Repeated service, failure of conception, turbidity in estrus. Repeated service क्या? Repeated service किसको कहते हैं? रिपीटेड सर्विस का क्या मतलब होता है, कोई बता सकते हैं? रिपीटेड सर्विस किसको कहते हैं? क्या समझते हैं रिपीटेड सर्विस? सर्विस. हेलो हेलो. हाँ, रिपीटेड सर्विस क्या होता है? बार बार एआई करेंगे. हाँ, frequently if you are doing AI, it is a sign that animal is having may have subclinical endometritis. और it may the chances there is a हो सकता है फेलियर ऑफ कंसेप्शन भी हो. मतलब बार बार हम सर्विस दे रहे हैं इसका मतलब है कंसेप्शन फेलियर हो जा रहा है. तो हो सकता है कि सब क्लिनिकल इंडोमेट्राइटिस हो. तो हम इसको सब क्लिनिकल इंडोमेट्राइटिस के पहचान से साइन जो है ये टर्बिडिटी डिस्चार्ज. टर्बिडिटी का मतलब धुंधला होगा, मतलब क्लियर क्रिस्टल क्लियर डिस्चार्ज नहीं होगा. जब एआई करने जा रहे हैं तो इसके प्राइस डिस्चार्ज को वेजाइनल डिस्चार्ज को अच्छी तरह से देखिए. अगर उसमें गौर से देखें, अगर फ्लैक्स पस का फ्लैक्स जरा सा भी फ्लैक्स नजर आए इट मींस द एनिमल इज हैविंग इंडोमेट्राइटिस. इट मे बी सब क्लिनिकल में तो पस फ्लैक्स भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पस फ्लैक्स मिल गया इसका पहले इंडोमेट्राइटिस का ट्रीटमेंट करें. टर्बिडिटी हो गया, प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज इन दी पोस्टपार्टम एनिमल. पोस्टपार्टम एनिमल किसको कहते हैं भाई, कोई बता सकते हैं? द एनिमल गिवन बर्थ. When animal come into heat after birth, after calving, it is called postpartum animals. This is postpartum estrus. Okay, postpartum animal का मतलब समझ गए? Postpartum animal, postpartum periods after parturition, after calving is called postpartum. Estrus cycles and period is usually normal. Occasionally the estrus cycle length may be shortened. खास बात यह है कि जब भी किसी गाय और भैंस में मेट्राइटिस होगा
उसके जो साइकिल होंगे, इट विल बी अ शॉर्ट, इट विल बी whenever cow will have the metritis, animal will repeat at 8 to 10 days interval, बार बार 8 to 10 days interval पे रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि सीएल जो है वो डेड हो जाता है, वो लाइसिस हो जाता है। रीजन इसका है इंडोटॉक्सिन्स, देयर इज इन्फेक्शंस which help in the releasing of endotoxin from the microbe, and that endotoxin get in blood circulation and help in electrolysis. So animal will come frequently in estrus at 8 to 10 days interval. Due to inflammation of endometritis preventing the development of CL, and that CL, you know, it help in development of conceptus. So unless CL will be there, the conceptus will not be damaged. So CL अगर regress हो रहा है बार बार, means animal is having some problem, maybe endometritis, because animal will repeat at 8 to 10 days interval. The fertilized egg dies because of the infected endometrium, and animal repeat to estrus. Prognosis fair to good. So treatment क्या है? Subclinical endometritis और first degree of endometritis का treatment, use any broad spectrum antimicrobials either by parenteral or by IU. Use PGF, prostaglandin alpha for luteolysis, also help for increasing the uterine tones by bringing the animal into the estrus. So और किसी को कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो बता सकते हैं। अगले क्लास में हम बताएंगे सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस, हालांकि ये बहुत स्मॉल है, फिर भी इसको हम बताएंगे, इसके आगे और भी नया टॉपिक लाएंगे। तो अभी फिलहाल ये मेट्राइटिस हम कवर करते हैं। मेट्राइटिस के ट्रीटमेंट में और क्लिनिकल साइन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। हेलो सर, इसका ट्रेड नेम वाला दवा बताएंगे सर? इसका इसका दवा ट्रीटमेंट का सर, ट्रेड नेम सर? ट्रेड नेम किस एंटी चीज का? जी, ये इसी का सर, ये सब क्लिनिकल मेट्राइटिस, अच्छा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स, जैसे मान लिया जाए आप जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल, मान लिया स्टेटलिन बोलस है ना, या फिर मान लिया जाए लेनेवो एपी से आप उसका वॉश कर दीजिए। लेनेवो एपी समझते हैं, जो दवा आता है इंटास का आता है, लेनेवो एपी सस्पेंशन 100 ml का, तो उसमें 90 ml आप 60 ml जो है उसमें डाल दीजिए, यूट्रस में इंट्रायूटाइन इन्फ्यूज कर दीजिए। रेगुलर 3 दिन करेंगे तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन जो भी यूट्रस में होगा दूर हो जाएगा। फिर आप, ये तो इंट्रायूटाइन हो गया। पेरेंटल में मान लिया जाए आप फ्लॉक्सीडीन, और फिर फ्लॉक्सीडीन के अलावा भी मान लिया जाए ये आता है फोर्टिवीर इंजेक्शन। दिस इज ए लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन, दिस इज ए सिंगल शॉट इंजेक्शन। इफ यू आर गिविंग, if you are treating an animal, that animal are living far from your presence, from your home, then you should give a single shot injection like Fortavir or Fluoxetine, and this is can be given a parenteral route. Parenteral का मतलब या तो IV दे या इंट्रामस्कुलर दे, ये सब पैरेंटल रूट कहते हैं। जब हम इंट्रायूट्राइन रूट से देते हैं, इसको इन्फ्यूजन करते हैं, तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल दे सकते हैं। यूज ऑफ PGF2 अल्फा, हम बताएं PGF2 अल्फा भी बहुत ही मदद करता है इस एंडोमेट्राइटिस को दूर करने में। क्यों? क्योंकि जब हम डालेंगे तो एनिमल हीट में आएगा, और हीट में आएगा तो जो यूट्रस है, यूट्रस में ल्यूकोसाइड का लेवल में इंक्रीज करेगा, एंड दैट विल हेल्प इन रिमूविंग ऑफ द इन्फेक्शन और द इटियोलॉजिकल एजेंट। दिस इज द ल्यूकोसाइड। क्या है ल्यूकोसाइड्स? क्या है? ये हमारा डिफेंस सेल्स, इसलिए है ना, न्यूट्रोफिल सेल्स। हेलो, तो जो ब्रांड नेम है, जैसे मान लिया जाए प्रेगमा है PGF2 अल्फा का, साइक्लिक्स है, वेटमेट है। एंटीमाइक्रोबियल में बता दिए ब्रांड नेम है, जैसे कि लेनेवो एपी हो गया, आप स्टेटलिन बोलस हो गया, आप लिक्सेन आयु दे सकते हैं, आप क्लिनेक्स बोलस दे सकते हैं। ये ब्रांड नेम है, क्लिनेक्स बोलस, लिक्सेन आयु सैचेट्स में आते हैं। इसको मिला के 20 ml नॉन मिला के इन्फ्यूज कर सकते हैं। ह्यूरिया बोलस। हाँ, और बताइए, कोई दिक्कत? हेलो सर, एक बार शुरू से सर, सब क्लिनिकल के मेट्राइटिस से पहले तक सर एक बार गो थ्रू लीजिएगा सर। सब क्लिनिकल से पहले का
सब क्लिनिकल सब से पहले? क्लिनिकल। जी अच्छा, जी शुरू से सर, शुरू से। जी जी। देखो मेट्राइटिस, मेट्राइटिस क्या है? मेट्राइटिस लिटरली नॉट, मेट्राइटिस इज द serious form of infection of uterus. Metritis is emergency disease. If कई बार मेट्राइटिस में क्या होता है कि एनिमल में बहुत ज्यादा पस आने लगता है, इवन लंगड़ापन आने लगता है, लेमनेस भी आ जाता है। ये बहुत एक्सट्रीम केस में होता है, सभी केस में नहीं होता है। मेट्राइटिस में क्या होता है, मुख्य रूप से जब पूछेगा तो आप ये दबा दीजिएगा, कहीं भी वाइवा दे रहे हैं या कुछ, मेट्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द यूटेरस, और अगर इंटायर थिकनेस ऑफ यूटेरस ये बोलेंगे। मेट्राइटिस में क्या होगा, पस बनेगा और डिस्चार्ज आएगा। इंडोमेट्रियम में अगर इंफेक्शन है तो इंडोमेट्राइटिस करती है, क्योंकि 3 लेयर्स होते हैं यूटेरस। तो जो पहला लेयर है तो उसको कहते हैं सेरोसा लेयर्स, है ना, पेरीमेट्रियम, है ना। इसके बाद जो अंदर में जो है इंडोमेट्रियल लेयर्स, तो इंडोमेट्रियल लेयर्स हैं उसमें इंफेक्शन होता है तो इंडोमेट्राइटिस करते हैं। इसके 3-4 फॉर्म है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। इंडोमेट्राइटिस और मेट्राइटिस एक ही मान के चलो। तो फर्स्ट डिग्री इंडोमेट्राइटिस इज आल्सो नोन एज सब क्लिनिकल, और इसमें क्या है, ज्यादातर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट करना भी चाहते हैं तो आप क्या करें, 2% लूगल सॉल्यूशन, 2% लूगल सॉल्यूशंस जो है उसको जो है 2 ml लीजिए, 2% लूगल सॉल्यूशन को, उसको 100 ml मिलाइए और 2-3 दिन इंट्राइफ्राइन डालेंगे, इससे साफ होगा। इससे भी नहीं हो सकता है तो आप नॉर्मल फाइन सॉल्यूशंस डाल के 100 ml 3 दिन अगर वॉश करते हैं तो इससे भी जो है फर्स्ट डिग्री ऑफ मेट्राइटिस विल बी रिमूव, इट विल बी क्योर्ड। इसी प्रकार से डिस्चार्ज थ्रोन बाय, जैसे हम बताएं कैसे जानेंगे कि फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री? जब एनिमल बैठे या उठे अपने आप डिस्चार्ज गिर रहा है, पस गिर रहा है, इट इज थर्ड डिग्री ऑफ मेट्राइटिस। व्हेन एनिमल इज एग्जामिन्ड आफ्टर मिल्किंग और स्क्वीजिंग ऑफ यूट्रस, अगर डिस्चार्ज कर रहा है तो सेकंड डिग्री करती है। और जब थर्ड डिग्री में क्या होगा, जब उसका सारा स्ट्रेस वगैरह साइकिल सब नॉर्मल है, डिस्चार्ज आप हाथ डाल के देख रहे हैं तो भी डिस्चार्ज नॉर्मल आ रहा है, क्लियर ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज है, बट आफ्टर इंसेमिनेशन 3 से 4 दिन के बाद उसमें पस नजर आ रहा है, इट मींस दिस इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ इंडोमेट्राइटिस, इट नीड ट्रीटमेंट्स, है ना, सिंपल 2% लूगल सॉल्यूशंस। तो ऑरल एग्जामिनेशन और रेक्टल एग्जामिनेशन एटॉनिक यूट्रस, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं यूट्रस को तो टोनिसिटी उसमें नहीं रहती है। जब इन्फेक्शन होगा तो यूट्रस में टोनिसिटी एब्सेंस होगा, जबकि नॉर्मल यूट्रस जो अच्छा यूट्रस है जिसमें डिजीज नहीं है उसमें टोनिसिटी होगा। तो हम जो बेसिकली जो ट्रीटमेंट करते हैं यूट्रस का, हम कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल सस्पेंशन दे सकते हैं, नहीं है तो सबसे सस्ता है आप लूगल सॉल्यूशन 2% बना लीजिए, ये बहुत सस्ता है। 2% लूगल सॉल्यूशन बनाइए और उसका 2 ml 100 ml मिला करके इन्फ्यूज कर दीजिए यूट्रस से 3 दिन लगातार, ये दूर हो जाएगा इन्फेक्शन। फिर उसी प्रकार से ट्रीटमेंट सेकेंड डिग्री में स्ट्रेंथ जो है थोड़ा सा लूगल सॉल्यूशन का बढ़ गया, 2 to 4% हो गया है। उसी प्रकार थर्ड डिग्री में जो स्ट्रेंथ है 5% लूगल